हम प्रभु का धन्यवाद करते भाई जोसेफ से जो कुछ भी सुनने को मिला। Let's thank God for whatever we heard from Brother Joseph from God. हम जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमसे ये कहना चाहता है कि प्रभु हमें क्षमा देना चाहता है। We need to know that the Holy Spirit wants us to know that God wants to forgive us. देखो कई बार हम जब कुछ गलती करते हैं या पाप करते हैं, हमको लगता है कि परमेश्वर अभी हमसे प्रेम नहीं करता। So whenever we do something wrong, whenever we commit a sin, we tend to think that God doesn't love ये हम us. सबने कई बार अनुभव किया होगा। And all of us must have experienced that. लेकिन जब हम कुछ अच्छा करते हैं हमको लगता है प्रभु का प्यार अभी हमारे लिए है। जब हमसे कुछ भी गलती हो जाती है हमको लगता है शायद अभी प्रभु मुझसे थोड़ा नाराज होगा। Whenever we do something good, then we think, yeah, God is happy with us. But and when we do something wrong, we feel that maybe God is upset with us. ये हम सोचते हैं, And this is the way we think. लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं सोचता। But God doesn't think like that. बाइबल कहता है परमेश्वर हमसे तब से प्रेम करता है जब हम पापी थे। The Bible tells us that God loved us when we were still sinners. तो हम सोचते हैं हम कुछ अच्छा करने के बाद कुछ गलत हुआ तो मतलब प्रभु हमसे नाराज है। And we think that when we do something good and after that when we do something bad, that God is angry with us. देखो हमने आज सुना कि परमेश्वर पुराने नियम में जैसे हमने देखा वहाँ पर लिखा है धन्य है जिसके परमेश्वर पाप ढाँप देता है। And right now we heard in the Old Testament that blessed is a man who's Sins are covered. whose sins are covered. तो हम देखते हैं पुराने नियम में जब कोई व्यक्ति पाप करता था तो उसको बैल और बकरे का लहू चढ़ाकर उसको ढापा जाता था। And in the Old Testament, when somebody sinned, their sin was to be covered with the sacrifice of a bull or a sheep. लेकिन नए करार में यीशु मसीह का लहू वो पापों को मिटा देता है। But in the new covenant, the blood of Jesus Christ washes us, cleanses us from our sins. जैसे भाई ने समझाया एक हमारे पाप अगर पर्दे के नीचे रखा है, Just like Brother Joseph explained to us, like our sin is covered by a cloth. उसको उठा के देखेंगे तो वहाँ पाप दिखेगा। And if you lift up the cloth and see, you can still see the sins. लेकिन नए करार में अगर वो लिखा है मिठा देते वो है ही नहीं वहाँ पर। But in the new covenant, those sins are totally removed, washed away. It's not even there. तो आप जब पर्दा हटाओगे तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, And when you remove the cloth, you'll see nothing over there. क्योंकि यीशु मसीह का लहू इतना सामर्थ्य कि वो पाप पूरी तरह से मिटा देता है। Because the blood of Jesus is so powerful that it completely washes away from our sins. हमने चाहे अपने जीवन में कितने भी पाप किए हो, And no matter if we've done many sins in our lives, तो पहला यूहन्ना 1:9 में हम पढ़ते हैं अगर हम परमेश्वर के सामने उसे मानते हैं, and in 1 John 1:9 it says that if we confess our sins उसे छोड़ देते हैं, and if we repent from our sins, तो परमेश्वर हमारे पापों का लेखा नहीं लेगा। and that God will be faithful and just to forgive our sins वो हमारे उधर लिखा सब पापों से क्षमा करेगा, and cleanse us from all our चाहे हमने iniquities. कितने भी बड़े पाप किए हो। No matter how big your sin is. हमारे नजर में बड़ा छोटा हम सोचते हैं, In our eyes we see it as big and small. लेकिन परमेश्वर के नजर में हर पाप उतना ही भयानक है। But in God's eyes, every sin is as big and as dangerous. और यीशु मसीह हर एक पापों से हमें शुद्ध करेगा। And Jesus will forgive us and wash us from every sin. देखो पुराने नियम में आदम और हवा ने जब पाप किया था, And in the Old Testament, when Adam and Eve sinned, क्या हुआ था? what happened? वो भाग रहे थे, They were running away. परमेश्वर उनके पास आया, God came behind लेकिन them, वो भागते रहे। but they kept running away. लेकिन नए करार में यीशु मसीह ने हमें एक उदाहरण दिया है, And in the New Testament, Jesus gave us an example. जहाँ उड़ाऊ पुत्र भी ऐसे ही गलती करता है, When the prodigal son committed a similar mistake, वो लेकिन मानता है कि मेरे से पाप हुआ है, the prodigal son acknowledged that he has done something वो wrong. कहता है मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया, He said, I have sinned against heaven. मैंने पिता के नजरों में पाप किया, I have sinned against my लेकिन मैं father. फिर भी प्रभु के पिता के पास जाऊंगा। But still I will go back to यही my चीज है father. नया करार, This is the new जहाँ covenant. कितनी भी गलती होने के बाद हम प्रभु के पास जाते हैं, When no matter how many sins we've committed, when we come back to प्रभु से God कहते हैं प्रभु मुझे आइंदा ये ऐसा नहीं करना, and we say to God, I don't want to do this मैंने तेरे again. विरुद्ध में ये पाप किया है, And I have sinned against you. तेरे नजरों में ये पाप किया है, In your sight I have committed this sin. लेकिन आप मुझे क्षमा करने के लिए सामर्थ्य हो। But you are faithful and you are sufficient to forgive प्रभु my हमें क्यों sins. क्षमा करना चाहता है ब्रदर्स एंड सिस्टर? Why does God want to एक forgive वचन us? बोल कर खत्म करता हूँ, One verse I want to read. एफिसियों अध्याय 3 Ephesians chapter 3.
वर्स 12 verse 12. वहां पर लिखा है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसा के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। In whom we have boldness and access with confidence through faith in Him. परमेश्वर चाहता है कि हम उसके निकट आए। God wants us to come near to Him. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उससे दूर रहे। God doesn't want us to be away from Him. परमेश्वर चाहता है हम सब पाप का माफी मांग के उसके निकट और उसके साथ फेलोशिप रखे। God wants us so that each of us would ask for forgiveness and be washed and be near to Him. इसीलिए परमेश्वर हमें बार बार क्षमा करता है That's why God forgives us again and again. और वो चाहता है कि हम उसके निकट आए। And He wants us that we come near to Him. रोमियो अध्याय 5 में एक वचन लिखा है, आप देखो। Romans 5:1 verse is there. Let's see. रोमियो अध्याय 5 का 1 आई थिंक Romans 5 verse 1. देखो वहां पर लिखा है 5 के 1 में, परमेश्वर क्यों चाहता है हमारे पापों को क्षमा करना। Here it says why God wants to forgive वहां us. पर लिखा है, जब विश्वास से उसने हमें धर्मी ठहराया, Therefore, having been justified by faith, तो अपने प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के साथ मेल रखे। we have peace with God through our Lord Jesus वो Christ. चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ और यीशु मसीह के साथ सहभागी हो और उसके साथ एक रिश्ता बनाए रखे। God wants us to have fellowship with Him and His Son Jesus तो हम Christ. प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इतना अनुग्रहकारी है कि हमारे पापों को क्षमा कर कर वो एक फिर से हमारे साथ रिश्ता में आना चाहता है। I want to thank God that God is so gracious that He wants to forgive our sins and again have relationship with us. I thank God for the opportunity. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ये मौके के लिए। I would like to share what Jesus told. मैं यीशु मसीह ने जो कहा उसके बारे में बांटना चाहता हूँ। The moment he started his ministry at the age of 33, जैसे ही यीशु ने 33वें वर्ष में अपनी सेवकाई की शुरुआत की, repent, kingdom of God is near. उन्होंने कहा कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। And the last word he spoke in the Revelation is also the same. Repent, the kingdom of God is near. और प्रकाशित वाक्य में जो आखिरी शब्द उन्होंने कहे वो भी यही थे कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। I understand this in this way. If we repent, we can go near to the kingdom of God. और मैं इसे इस रूप से समझता हूँ कि अगर हम पश्चाताप करेंगे तो हम परमेश्वर के राज्य के निकट जा पाएंगे। We can be transformed more like a God. हम प्रभु परमेश्वर के समान परिवर्तित हो जाएंगे। No matter how small the mistake is, if we repent, we can go to a Christ-like. अगर हमारी जो गलती कितनी भी छोटी होने दो, अगर हम पश्चाताप करेंगे तो प्रभु मसीह के जो है करीब हो जाएंगे। I was remembering the Adam. मैं आदम के बारे में सोच रहा था। When he disobeyed God, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया and God was asking him, why you have sinned? और परमेश्वर उससे पूछ रहे थे कि तुमने पाप क्यों किया। He told the lady that you gave only made me sin. और उसने प्रभु से कहा कि तुमने जो स्त्री मुझे दी है उसके कारण मैंने ये किया। The inherent nature in us is not accepting our own mistake. और ये जो हमें मिला हुआ स्वभाव जो है ऐसा है कि हम अपनी गलतियों को जो है मानते नहीं हैं। So I believe that is the reason that we do not able to receive the power of God. और मैं ये विश्वास करता हूँ यही कारण है कि हम परमेश्वर के सामर्थ को नहीं पाते हैं। The same happened with the Eve. और यही हवा के साथ भी हुआ। She also did not accept her mistake. She put the blame on the serpent. और उसने भी अपने पापों को अंगीकार नहीं किया, उसने जो दोष है वो सांप पे डाल दिया। If you see in the Genesis 2 and 3, nobody asked forgiveness. और जैसे कि हम उत्पत्ति की किताब 2 और 3 में देखेंगे कि किसी को भी हमें क्षमा करने की ज़रूरत नहीं है। That is the greatest mistake that man has committed, but nobody has asked the forgiveness. और ये सबसे बड़ी गलती है जो मनुष्य ने की है कि किसी ने भी पापों की क्षमा नहीं मांगी। So there was no repentance and there was no forgiveness for it. और उसी के लिए कोई पश्चाताप भी नहीं हुआ, उसके कारण कोई क्षमा भी नहीं मिला। But Jesus, he took the blame of everyone. और यीशु मसीह ने सारे लोगों का दोष जो है अपने ऊपर लिया। Adam could not able to accept even his own. और आदम जो है खुद की गलती को भी मान नहीं पाया। Jesus could
took the blame of everyone. यीशु जिसने सारे लोगों का दोष अपने ऊपर उठाया, So each and every one's of sin has been put on him. ताकि आप में से हम में से हर किसी का जो पाप है उनके ऊपर डाला गया। That's why he has to shed his full blood to the ground, इसीलिए प्रभु को अपना पूरा लहू जो है धरती पर बहाना पड़ा, because this ground was cursed by God. क्योंकि ये जो धरती है परमेश्वर के द्वारा श्रापित की गई है। So I see whenever we try to argue with others, we do not took the mistake of us. और ये मैं देखता हूँ कि जब भी हम लोगों के साथ विवाद करते हैं तो जो गलती जो है हम अपने ऊपर लेके मानते नहीं हैं। So I think we should improve and accept our own mistake, even though we have not committed it. मैं सोचता हूँ कि जो भी गलतियाँ हैं वो हमें अपने ऊपर ले लेना चाहिए, हाल भले ही हमने वो गलती की भी क्यों ना हो, कि नहीं की भी क्यों ना हो। Praise God. Thank you. परमेश्वर की स्तुति। या ब्रदर जोसेफ ने शेयरिंग किया, बहुत ही प्रोत्साहन था। और हम देखते हैं कि एक फाउंडेशनल ट्रूथ है जो हम सभी को जो ज़रूरत है। This is a very foundational truth which each one of us needs. हम इसको ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु ये तो मेरे लिए नहीं है, ये उस भाई के लिए या इस बहन के लिए। And we can never say that God, this is not for me, it's for that particular brother or that particular sister. हम बोलते तो नहीं है ऐसे, Maybe we don't say that, बट हमारा एटीट्यूड ऐसा हो सकता है। and maybe our attitude could be like that. मेरे पाप तो क्षमा हो, इस सिस्टर ने कितना पाप कर रही है अभी भी। My sins are forgiven, but see that sister, she's still having sin. ये भाई अभी भी कितना पाप कर रहा है। And that brother is still having so much sin. मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए बहुत नीड है ये वचन। I want to say that this word is very much needed for me. क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं खुद परफेक्ट नहीं हूँ। Because I can see that I'm not perfect at all. तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम जब भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करें, परमेश्वर के करीब हमको आना चाहिए पश्चाताप मन लेकर। And it is a very beautiful thing that God says that whenever we commit sin, that we should come to God and ask God for forgiveness. और ये ऐसा नहीं कि परमेश्वर माफ़ करेगा, ये हमको सबको पता है। And it's not that God will forgive us, will not forgive our sins. बट We तुम know. जब सच्ची में तुम बॉर्न अगेन रहोगे, But when we are truly born again, जब हम तुम सच्ची में बॉर्न अगेन नया जन्म पाए रहोगे, and when you are truly like newly born again, आपको पाप करने को बिल्कुल इच्छा नहीं करेगा। then you will have no desire to sin. और जब अब एक्सीडेंटली हम गिर जाते हैं तो आपका मन ऐसा करेगा, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध सबसे बड़ा गुनाह किया है, प्रभु मुझे माफ़ कर। And when by accident we fall into sin, we will be in a state where we will say, God, we have committed such a big sin, God, please forgive us. क्या हम पाप इसलिए कर रहे हैं कि परमेश्वर मुझे माफ़ करेगा? Are we committing sin that so that God will forgive us? इसका मतलब हम बॉर्न अगेन नहीं हुए अभी तक। That means then that means we are not born ठीक है, हमको again. पाप करने के लिए बहुत एंजॉय कर रहे हैं। Because we are enjoying that sin. आपको पता है कुछ पाप ऐसे भी है जो परमेश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा उस चीज़ को लेकर। You know, there are some sins that God will not give forgiveness for that. मैं मत्ती 6 में लिखा है, मत्ती 6 उसका 14 में, Matthew 6 verse 14 it says. उसमें लिखा है कि परमेश्वर, हमको सबको पता है कि परमेश्वर हमारे पापों को माफ़ करेगा, बट परमेश्वर का हम देखते हैं कि दूसरा पहलू भी, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराधों क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा ना करेगा। We know that God will forgive our sins, but here in verse 14 it says that, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father. हो सकता है हमारा बहुत सारा पाप क्षमा हुआ है, लेकिन क्या हम दूसरे के पापों को माफ़ कर रहे हैं क्या? Maybe many of our sins are forgiven, but are we forgiving other people their sins? क्या हमारे मन में कोई ग्रज या कड़वापन किसी के लिए है क्या? Is there a bitterness or a grudge against anyone in our You know, hearts? ये बहुत डेंजर चीज़ है। But because this is a very dangerous thing. क्योंकि हम अगर मार्क 6 में, मैं पूरी तरह समय नहीं है इसलिए,
मैं पूरी तरह नहीं जाना चाहता हूँ। मत्ती 6 में जो हेरोदियस और हेरोदियस के मतलब उसकी वाइफ यूहन्ना बैप्टिस्ट के खिलाफ एक मन में कड़वाहट रखती है। क्यों पता है? यूहन्ना बैप्टिस्ट ने बोला था ये अच्छी बात नहीं है कि तुम अपने वाइफ को के साथ तुम रहे। Here in Matthew chapter 6, if you read fully, you will see that Herodias had some grudge against John the Baptist because John the Baptist confronted her about मत्ती 6:19 मार्क 6:19 में लिखा है। मार्क 6:19 में लिखा है। Mark 6:19 it says. उसमें कि उसने ग्रज रखा है, इसके कारण उसने सिर्फ ग्रज रखी नहीं बट वो इन्फेक्शन उसके बेटी को भी फैला दी। Here it says that this Herodias not only had a grudge in her own heart, but she also infected her daughter. इसलिए हम प्रभु से मांगने चाहिए, प्रभु सर्च माय हार्ट, मेरे कड़वापन जो भी मेरे अंदर है, जलन या गुस्सा, रॉन्ग एटीट्यूड मुझे बताओ। So we need to tell God, God search my heart. If there's any wrong attitude, if there's any bitterness, please show it to me. वो ग्रज के कारण उसने वो यूहन्ना बपतिस्मा का भी सर कटवा दी। And because of that grudge, she got John the Baptist beheaded. तो हमको मेक श्योर कि हमारा परमेश्वर ने पाप माफ़ किया है, कि हमारा हमने दूसरे को माफ़ किया है क्या। So we need to make sure that we don't have any sin and whether we have forgiven others their sins. God bless you. God bless you. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ और चर्च को धन्यवाद करती हूँ और मैथ्यू ब्रदर, जोसेफ ब्रदर और सब सिस्टर लोग को, ब्रदर लोग को धन्यवाद करती हूँ। सैटरडे को मैं काम पे जा रही थी तो रिक्शा में मैंने मोबाइल भूल गई और फिर मैं आगे गई, देखती तो मोबाइल नहीं है। फिर मैंने ढूंढने लगी बैग में कि मेरा मोबाइल गुम हो गया। फिर मैं सोची, फिर आगे आके फिर वापस वो रिक्शा वाले लोग को पूछी तो रिक्शा वाले लोग ने बोला कि आपका मोबाइल अभी रिक्शा में गया तो अभी मिलना मुश्किल है, तो आपका फ़ोन नंबर होएगा तो दे दो, मैं कॉल करके पूछता हूँ। तो मेरे को नंबर भी याद नहीं था। फिर मैं सोची अभी मैं कंपनी में जाऊँगी तो किसी को बोलूँगी मेरा नंबर से फ़ोन करने। फिर मैं ऐसे सोचते सोचते गई तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद की, परमेश्वर अगर आपका इच्छा है तो मोबाइल मिलने दो, अगर नहीं है तो जाने दो। ऐसे सोचते मैं गई तो दरवाजे पे देखा तो हमारे मैडम वहाँ पे खड़ी थी। तो मैडम बोली आपका मोबाइल किधर है? तो मैंने बोला मैडम वो मोबाइल रिक्शा में भूल गई। तो मैडम ने बोला वो मोबाइल रिक्शा वाले ने मेरे को कॉल करके बोला आपका मोबाइल वो रिक्शा वाले ने लिया है तो आने वाला है। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, वो मोबाइल मिल गया। I really thank the Lord for what I heard today. मैं सचमुच परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ सारे वचनों के लिए जो मैंने आज सुना है। It never occurred to me that in the Old Testament, when you asked for forgiveness, your sin was only covered; it was not wiped away. ये कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि पुराने करार में जब भी हम पापों की क्षमा मांगने जाते हैं तब वो पाप जो है ढांपे जाते हैं सिर्फ। I didn't realize that it was not wiped off. और मैंने ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई कि वो जो है शुद्ध नहीं किया जाता है। And I was reminded of this verse from Hebrews chapter. Hebrews chapter 9, इब्रानियों verse 13 and 14 and 15. इब्रानियों 9, 13, 14 और 15 वचन। For if the blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkling those who have been defiled sanctify for the cleansing of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, cleanse your conscience and from dead works to serve the living God. क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। I thank God that this was something I got light on, that it is through the blood of Jesus Christ that I have been completely cleansed. It's not only are my sins covered, but it's when that cover is taken off, it's the Lord will see it as completely cleansed.
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे इस बात पर प्रकाश मिला कि प्रभु यीशु मसीह का लहू जो है मेरे पापों को जो है उसके लहू से पूरी तरह जो है शुद्ध कर देता है। वो जब वो जो ढापा हुआ चीज़ खोल के भी देखे तो वो जो पाप जो है वहाँ पे पूरी तरह शुद्ध दिखता है। And also we heard about how it's so important for us to accept our mistakes, accept our sins. और ये भी हमने सुना कि कितना ही महत्वपूर्ण है कि हम अपनी गलतियों को मानें, उसका अंगीकार करें। We see how Adam and Eve never accepted, they never asked for forgiveness. हम देखते हैं कि आदम और हव्वा ने अपने पापों को माना नहीं, अंगीकार नहीं किया, उन्होंने पापों की क्षमा नहीं मांगी। And because of that, all that we see is happening on this earth. इसीलिए हम देखते हैं ये दुनिया में ये सारा कुछ हो रहा है। So it's so important that we accept our sins. Jesus spoke about repentance, and only then he can start the transforming work in us. इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम पश्चाताप करें। यीशु मसीह ने इस बारे में बात की कि जब हम पश्चाताप करते हैं तभी हमारे जीवन में जो है परिवर्तन आने लगता है। I remember this verse from 1 Timothy chapter 4 and verse 16. It says, "Pay close attention to yourself." पहला तिमोथी 4 अध्याय उसका 16 वचन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपने ऊपर ज़्यादा कर ध्यान दें। So this is something I see a great need in my own life, that I need to pay close attention to myself, not look at others around me. तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में भी इस बात की ज़रूरत है कि मैं अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दूँ, इसके बजाय कि मैं मेरे आसपास के लोगों के ऊपर ध्यान दूँ। Because it's so easy for us to see others' mistakes and not to see our own mistakes. क्योंकि हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है कि हम दूसरों की गलती को तो बहुत अच्छे से देख पाते हैं परंतु अपनी गलती को नहीं देख पाते। We can see it through a magnifying glass. परंतु हम जो है उसे जो है एक दूरबीन के द्वारा अच्छे से देख पाते हैं। But I pray that the Lord will help me, as I'm growing older, I remember a song which says, "Let not your heart be hardened." और जैसे ही मेरा उम्र बढ़ते जा रहा है तो प्रभु मेरी सहायता करे, जैसे कि ये गीत में लिखा हुआ है कि तुम्हारा हृदय जो है वो कठोर ना हो जाए। Let not your heart be hardened, let not your love grow cold. तुम्हारा हृदय कठोर ना हो जाए, तुम्हारा प्रेम जो है वो ठंडा ना पड़ जाए। So I see it is possible. I see that in my own life it's possible for my love towards God and towards others to grow cold, and for my heart to become hardened, and just like how old things become rough and tough, they're not soft and tender. मैंने अपने जीवन में ये बिल्कुल देखा है कि मुमकिन है कि मेरा जो प्रेम जो है वो दूसरों के लिए ठंडा पड़ जाए और मेरा जो हृदय जो है बहुत ही कठोर और सख्त बन जाए, वो मुलायम ना रह जाए। I pray that my heart remains tender towards God till the day I die. और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा हृदय जो है जिस दिन तक मेरी मौत ना आए तब तक मेरा हृदय जो है कोमल बना रहे। That will only be possible if God shows His mercy on me. और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब परमेश्वर अपना जो दया है मुझे दिखाएगा। I realize how much I need His grace over my life. मैंने ये मालूम किया है कि परमेश्वर की जो अनुग्रह है मेरे जीवन में उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। And thank God that whenever we come to church, we hear these things, which will remind us again and again of our own need. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि जब भी हम कलीसिया में आते हैं ये जो वचन जो है हमें बार बार सुनाई देता है, हमें बार बार ये बातें हमें स्मरण दिलाता है। Yeah, praise God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए और आज जो कुछ भी हमने सुना उसके लिए। I want to thank God for this day and whatever we heard this day. आज जो कुछ भी हमने सुना मैं उसको मेरी लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया कल के दिन में उसको कंपेयर करके आपको बताना चाहूँगी। And what I've heard today, I want to compare with what I experienced in my life yesterday. ऑलमोस्ट 1 साल से मैं किसी चीज़ के नीचे दबी हुई थी। Almost for a year I was getting crushed under one thing. और मैं कोशिश कर रही थी कि वो चीज़ अपने आप से मैं हटाऊँ, किसी पे डिपेंडेंट ना रहूँ। And I wanted that somehow by myself I should remove it and without depending on anyone.
मेरे हस्बैंड मुझे हेल्प करना चाह रहे थे, बट मैंने उनको मना किया कि मैं खुद करना चाहती हूँ वो चीज़. My husband wanted to help me, but I refused, and because I wanted to do it myself. और फाइनली मैं हार गई उस चीज़ को लेकर. And finally, I had been defeated because of that thing. और फाइनली उस चीज़ को मेरे हस्बैंड ने ही निकाला, हटाया उस चीज़ को कल के दिन में. And finally, it was my husband who removed that thing for me yesterday. और जब मैंने उससे ये चीज़ पूछा कि यानी क्यों किया आपने ये चीज़ ना, मतलब मैं खुद करना चाह रही थी बट मैं हार गई थी, और जब मैं उन पे डिपेंड हुई और उन्होंने वो चीज़ निकाला तो उन्होंने एक चीज़ बोला, सुनंदा यू आर अ प्रेशियस फॉर मी. So I said, why did you do? I asked my husband, why did you do it? I wanted to do it myself. And then my husband said, Sunanda, you are precious to me. और जब मैंने रो दिया उस चीज़ को सुनते ही. And I just broke down because I heard that. और मैंने मन ही मन डिसाइड किया कि लॉर्ड आज के बाद मेरे हस्बैंड कुछ भी मुझे कहेंगे, चाहे वो गलत होने दे या कुछ भी होने, तो मैं उनकी हर एक बात को सुनूंगी. And then I thought, okay, God, after this, no matter what my husband says, whether it is right or whether it is wrong, I will listen to him. और आज जब दिन आया, मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए ड्रेस निकाला पहनने के लिए. And today my husband kept the dress for me to wear. वो ड्रेस में मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ. And I don't feel comfortable in that dress. और मेरी हस्बैंड की इच्छा थी कि मैं वही ड्रेस डालूँ. And it was my husband's desire that I wear that same dress. और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं वो ड्रेस पहनूँ. And I didn't want to wear that. वापस से वो कुड़कुड़ाना चालू हो गया कि मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये वो सब चीज़ मैंने बोलना शुरू कर दी. And again I was grumbling, I don't like this and all that. फाइनली मेरे हस्बैंड ने दूसरा ड्रेस आयरन करके मुझे दिया. And then my husband ironed another dress and gave me. ये चीज़ मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ, तो सेम चीज़ जब परमेश्वर हमारे पापों को, हमारे बोझ को, हमारी हर एक तकलीफ को जब साफ कर देता है, हमारे हर एक पापों को धो देता है, तो हम डिसाइड करते हैं लॉर्ड आई वांट टू फॉलो यू. And same thing when God decides to forgive our sins and forgives our sins, and then we come to the point where we say, God, I want to follow you. बट एक सर्टन टाइम के बाद जब हमारी इच्छा हमको नहीं मिलती, हम लॉर्ड को वापस से गुड़गुड़ाना शुरू करते हैं, मुझको तो यही चीज़ चाहिए, आप ये मुझे क्यों करने को बोल रहे हैं, मैं अपनी इच्छा करना चाहता हूँ. And when God gives us something which different from what we wanted, and then we start grumbling again that God, I didn't want this, I wanted बट something जब else. हम हमेशा याद रखेंगे कि आपने कितने गंदे गंदे कितने बड़े बड़े पाप किए जिसको परमेश्वर ने हमको पूरी तरीके से साफ कर दिया है, तो बहुत ईजी हो जाएगा जब हम उसकी बातों को समझ सकेंगे, उसको फॉलो कर पाएंगे. And when we realize that how much big sins, big and dirty sins that God has forgiven us from, then we will be able to realize and come to the point and say, God, we want to follow you. मैंने मेरे हस्बैंड को बोला, हनी ठीक है, आप जो बोल रहे हैं मैं वही ड्रेस डाल के निकलूंगी. And then I said, okay, to my husband, I'll wear whatever you decide. तो सेम चीज़ जब हम उस चीज़ को हमेशा रियलाइज करेंगे ना कि हमारी हर एक पापों को परमेश्वर ने छुपाया है, हमारे हर एक पापों को परमेश्वर ने धो दिया है, तो बहुत इजी हो जाएगा. हम परमेश्वर की हर एक बात को एक एक सेकंड को सुनने के लिए और उसके पीछे चलने के लिए हम रेडी हो जाएंगे. प्रेज गॉड. And when we realize that God has forgiven us our sins, covered our sins, then it becomes easy to follow and obey Him. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, परमेश्वर ने मुझे समय दिया. और I want to thank God because God has given me time. मुझे जब स्टार्टिंग से मैंने वचन ने सुना, जब मैं आई थी तो यही बात चालू था. I didn't hear the message from beginning, but I heard the message from later on. परमेश्वर हमारे पापों को ढका नहीं है. That God doesn't cover our sins. परमेश्वर हमारा पापों को भूल नहीं गया है. God hasn't forgotten our sins. परमेश्वर हमारे पापों को इतनी लंबा फेंक दिया है, उसे हम या परमेश्वर भी उसको देख नहीं सकता है. But God has removed our sins so far away that even God Himself cannot see it. तो मुझे ये बात बहुत उत्साहित किया था, क्योंकि हम देखते हैं पूरब और बाइबल में लिखा है वचन, पूरब और पश्चिम को आप मिला सकता है कोई, वो ऐसा रहेगा. And the Bible says that as far as the east is from the west, can anyone bring east and west together? आपके हाथ ऐसा रहेगा, उसको एक साथ ऐसा जोड़ नहीं सकता है, वो दोनों एक साथ ऐसा आ नहीं सकता है.
it will not come one on top of the other, it will cross each other. अगर वो दोनों को जोड़ कर देखना चाहते हैं तो वो मिलेगा नहीं. And when we try to join them together, it will not join. जब हम परमेश्वर के पास आते हैं When we come to God, तो आप कभी वापस ढूंढना भी चाहेंगे आपके पाप को, that even if you want to go and search your sins, तो परमेश्वर कहता है मैंने पूरब से पश्चिम जितने दूर है वो दोनों कभी मिल नहीं सकता है. तुम्हारा पाप भी तुमको मिल नहीं सकता है. और मैं भूल गया नहीं है, मैंने फेंक दिया है, उसका दंड सारा चुका दिया है क्रूस के ऊपर. God says that I have removed your sins. You cannot even search it. It's as far as the east is from the west. I have taken the punishment of your sins has all been paid. उसका जो भी कर्ज था All the debt that was there, वो सारा भर दिया गया है. all of the debt has been paid off. तो ये कितनी आनंद की बात है हमारे लिए. सच में जब भी ऐसा नहीं कहता है हम गिरते नहीं है. परमेश्वर का वचन में यीशु ने कहा आपकी भाई के ऊपर क्या मत करो, क्रोध मत करो. It doesn't mean that we don't fall. Bible says that don't be angry on your own brother. क्रोध ऐसा पाप है, मैं जहाँ तक मैं उसके ऊपर विचार किया मुझे बहुत बड़ा पाप लगता है. And anger is such a sin. When I think about it, it's actually very big sin. और लोगों को भी ये भी लगता है वो बहुत इजी पाप भी है. And people also think that it's a very easy sin. और कोई हेवी पाप नहीं है वो. And it's not a heavy sin. क्योंकि देखने वाला को लगता है कुछ भी नहीं है ये, हम कर सकते हैं. And the people who see it can say it's nothing, anyone can do it. लेकिन यीशु ने कहा है क्रोध मत करो. But Jesus said that don't be angry with your brother. क्रोध किसी के प्रति हम रखेंगे If we keep anger against anyone, तो हम उनका बुराई करेंगे. then we will be saying bad about that person. क्योंकि जैक ब्रदर ने भी ये बात कहा है, जब उनके बारे में हम लोगों के पास जाके बुराई करने लगेंगे Then even Brother Zach says that we will go and tell bad about that person to the other people. और वो बुराई ऐसा है ना, हम एक छुरी लेके उसको कचक 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 क्या कर रहा है, जितना हमारा गुस्सा है उतना सारा धिक्कार है. And that telling other people is like taking a knife and stabbing and how much anger we have, that much anger will be stabbing those people. और वचन ये भी कहता है कोई एक व्यक्ति ऐसा भी बात कर सकता है, हमारे बात चूरन की तरह क्या है, हम किसी को अपनी बातों से हत्या कर सकता है. And the word also says that our words can be like knives stabbing the other people. उनके विचारों को, उनके भविष्य को हम हत्या कर सकता है. We can be killing their person, प्रभु that, their future. प्रभु में उनका लाइफ को हत्या कर सकता है. That we may be killing their life in Christ. तो परमेश्वर का वचन कहता है, मुझे इस वक्त जहाँ वहाँ बैठे थे हम सब ये पाप में बहुत ही इजी गिर जाते हैं. And where we are sitting, all of us can fall into this sin very easily. लेकिन परमेश्वर कहता है जैसा वो क्षमा किया है वैसा हम क्षमा करने के लिए हमारा दिल को हम तैयार करते हैं कि नहीं. हर वक्त भले हमारा फैमिली में हमारे बच्चों के साथ हम ऐसा शब्द यूज़ करते हैं वो इतना तक गिर जाता है उनको उठना मुश्किल हो जाता है. We should forgive others their sins just as God forgave our sins. And sometimes we use such words that it can really kill that person. इसलिए परमेश्वर भी बोलते हैं जब भी तू बलिदान चढ़ाएगा तो क्या करो, अपना भाई के साथ समाधान बनाओ. And that's why Jesus says that whenever you come and bring your sacrifice, first you go and make peace with your brother. नहीं तो तुम्हारा बलिदान का कोई मतलब नहीं है. Otherwise your sacrifice would have no meaning. तुम्हारा जिंदगी भी दे दे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है. तुम्हारा अंदर किसी बहन के प्रति, किसी भाई के प्रति, किसी बच्चे के प्रति अच्छा उद्देश्य नहीं है. And it would mean that you have no right intention against any brother or sister or even against a child. और प्रेम नहीं है. Or you don't have love और हम for them. क्षमा नहीं कर सकता है. And you will not be able to forgive if you can't forgive. वो भी दिन ढलने से पहले. And that too before the sun goes down. तो मैं इस बात के ऊपर मेरा लाइफ में काम करना चाहती हूँ. And I want to work on this. क्योंकि परमेश्वर ये बताया है हम अपने बातों को हम जितना कम बात करेंगे उतना अच्छा है.
And God's word says that how much less we cover up our sins, that much. और जितना ज़्यादा blessing. हम सुनेंगे उतना परमेश्वर के राज्य के लिए हम काम में आ जाएंगे. थैंक यू. And more we obey, the more we'll be useful for God's kingdom. To share one small illustration. और मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहती हूँ. Actually, one Sunday school teacher wanted to show his Sunday school students about how bad or dirty sin is. और मैं संडे स्कूल टीचर होने के नाते में बच्चों को उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूँ कि पाप कितना बुरा है. One Sunday school teacher was showing. अच्छा, एक कोई तो संडे स्कूल की टीचर ने ऐसा बताया कि पाप कितना बुरा है. So when his Sunday school students had come to the class, और जब बच्चे आए थे संडे स्कूल के लिए, he had one vessel full of mud, wet, like कीचड़. तो उस व्यक्ति ने वो मट्टी को जमा किया जो कीचड़ के समान था. And so when his children came, and then he said, see, I'm going to show you something. और जब बच्चे आए तब उन्होंने बच्चों से कहा, देखो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ. And then he put his hands into that muddy water. और उसने उस व्यक्ति ने अपने हाथों को उस कीचड़ में डुबा दिया. And then all the children were like, ooh, yuck, chi, and all that. और सारे बच्चे फिर अपने अपने एक्सप्रेशन देने लगे कि कितना गंदा है, छी, बुरा है. Then he said, no, I'm having fun, I'm having lot of fun, and he kept playing with the mud. लेकिन वो बच्चों से कहता है, नहीं नहीं मैं तो बहुत आनंद कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मट्टी से खेल ही रहा था. And then they kept making like they were giggling also, and they were just disgusted by this whole thing. लेकिन बच्चे लोग वो देखकर बहुत उनको अंदर से घिन आ रही थी और बोल रहे थे क्या सब हो रहा है. And then he said, oh, you're not liking it. तब उस व्यक्ति ने उन लोगों से पूछा और बच्चों से पूछा कि क्या तुम्हें यह पसंद नहीं लग रहा. See my hands, you don't like my hands. देखो मेरे हाथों को, क्या वो अच्छे नहीं लग रहे हैं. And they were like chi 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 and all that. सब बच्चे कहने लगे शी शी शी, बहुत बुरा है. Okay, okay, and he kept his hands behind him. तब उसने अपने हाथों को पीछे रख लिया. And he said, now it's okay. अब उसने पूछा कि बच्चों को कि अब सही है. And they said, no, no, chi chi. He said, why? तो तब भी बच्चे कहने लगे नहीं नहीं अभी भी बहुत गंदा है. He said, why? You can't see my hands, no. तब उस व्यक्ति ने क्या, अब क्या हुआ, अब तो तुम मेरे हाथों को नहीं देख रहे हो ना. Then they said, no, but we know that you have dirty hands. लेकिन बच्चों ने कहा नहीं नहीं, लेकिन हमें जानते हैं कि तुम्हारे पीछे हाथ रखा है वो जो बुरा गंदा है. And then he said, don't be so angry with me. तब उस व्यक्ति ने बच्चों से कहा कि मुझसे ज़्यादा क्रोधित न हो. And then he took a candy that they usually like. Candy. तब उन्होंने चॉकलेट्स कुछ निकाले उसी हाथों से. And then he said, here, take this candy. और सारे बच्चों को उन्होंने चॉकलेट बांट दी. And then they were like, they didn't want to be anywhere near that. सारे बच्चे उसके नज़दीक भी आना नहीं चाहते थे. He said, no, this is a candy that you like. और तब उस व्यक्ति ने कहा ये तो चॉकलेट्स है जो तुम्हें अच्छा लगता है. But they said, no, your hands are too dirty, we don't even want to touch लेकिन it. बच्चों ने कहा कि तुम्हारे हाथ बहुत ही बुरे, हमें उसे छूना भी नहीं है. And with this simple example, even when I'm now saying it, I'm getting goosebumps. That with our sin, we think that, okay, if we can pretend that it is not there, then it is okay with God. हम भी ऐसे ये उदाहरण के दायरे में बताना चाहते हैं, ये जो पाप हमारे जीवन में हम करते हैं, हमको लगता है ठीक है ये तो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं है. We can pretend that it is covered up. और हम सोचते हैं कि ये सारे चीज़ ढापे जाएंगे. And with that same sinful heart or sinful mind, we come and we offer our gifts, whatever it is, and we come before God. और वही हमारा कपटी हृदय लेकर और बुरा मन लेकर हम परमेश्वर के पास आते हैं और उसे समर्पण करना चाहते हैं. And we should try to imagine how God sees us. It's just as disgusting as coming with muddy hands and giving तो हमें God सोचना something. चाहिए कि परमेश्वर किस रीति से हमें देखेगा कि जिस रीति से उस व्यक्ति का हाथ गंदा था वैसे हमारा गंदा जीवन लेकर हम प्रभु के पास आते हैं. No matter how good the gift is, if our hands and if our heart is not clean and washed, we cannot. That gift is meaningless before God. वो उपहार कितना भी मूल्यवान ना हो, अगर हमारे हाथ गंदे हैं तो उसे लेने के लिए हमारा मन जरूर खिचखिचाएगा. Let us remember this, and I want to thank God for reminding us and encouraging us that our God is a forgiving God. He's faithful and waiting to wash us and cleanses us from all our iniquities. ये उदाहरण को स्मरण रखें और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, हमारे पास ऐसा परमेश्वर है जो हमारे सारे अपराधों को से हमें क्षमा करता है और चाहता है कि हम उसकी संगति में आए.